Today we are meeting to know about an eminent personality whom the entire nation has forgotten for so many years, and nobody knows. Very little number of people knows about the Dr. Shyama Prasad Mukherjee. We have organized this particular program आज़ादी के अमृतोत्सव के विषय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दो महत्व व्यक्तियों का बात सुनना है, साथ साथ अपना ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का भी सुनने का है। फ्रेंड्स, जस्ट थिंक ऑफ ए पर्सन at the age of 52 he died, and prominent personalities of this country, whether Swami Vivekananda or anyone, they died at very young age. If at all they would have lived 70, 80 years, what would have happened to this country? Imagine it. And at the age of 52, born on 6th July 1901, died on 23rd of June 1953. Imagine a young man, a dynamic personality, versatile personality, an academician, writer, and a politician, and social reformer, and barrister. Just think of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, and who born in the West Bengal. And we have another important personality, Dr. Subhash Chandra Bose, also from the same place. And he also met the same fate like Shyama Prasad Mukherjee. They have sacrificed their lives for this great nation. Lakhs of people sacrificed their lives for the great nation, but the prominent personalities among them were Shyama Prasad Mukherjee, Balagangadhar Tilak, Gopalakrishna Gokhale, Dadabhai Nauroji, and Subhash Chandra Bose, Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel. There are many. You can't remember all of them. But the thing is, the prominent personalities, they were ignored, unfortunately, by our own people. That is the pathetic situation in this country. Friends, Shyama Prasad Mukherjee, fighting freedom struggle. After getting independence, he became the cabinet minister in the then Pandit Jawaharlal Nehru's cabinet. He stayed there for a very shorter period because he couldn't digest the things which were going in a wrong direction, for which purpose we have got the independence and why we are going in the wrong direction. That was the main motto behind the Shyama Prasad Mukherjee's quitting the government. देखिए, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस आए, इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करे, गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनने के बाद छोड़ दिए, ये मेरे लिए नहीं चाहिए। बिकॉज वाई ये देश में दो संविधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं हो सकते। दैट वाज द मेन इश्यू बिफोर Shyama Prasad Mukherjee. Before that, Shyama Prasad Mukherjee, at a young age, just imagine, he was born in the year 1901, and in the year 1934, he became the Vice Chancellor of Calcutta University. What was his age? Just 33 years young age. At the age of 33, he became the Vice Chancellor of Calcutta University. He was a true academician, academically sound, and he became the Vice Chancellor. Later on, he did several things, ultimately joined the freedom struggle, and Hindu Mahasabha president भी थे उन्होंने। बहुत साल तक activities में, till the end of his life, he was in the active life, activities of the active life. So unfortunately, there was a difference between Shyama Prasad Mukherjee and Pandit Jawaharlal Nehru because of the Liaquat Pact, which Nehru and Liaquat Ali signed. And by protesting this signing of the Liaquat Ali Pact, Shyama Prasad Mukherjee quit the government and resigned करके मेरे government की जरूरत नहीं है. I am going against this. This is going against the people of this country. That is what the Shyama Prasad Mukherjee said. And and he went to Jammu Kashmir. As a student, I am friends. Since 50 years, 50 years, we are fighting against the Article 370. Remove the Article 370. That was the slogan. I was involved in it. Many of the prominent personalities, those who are here, they might have involved in it. Article 370, which was brought into the constitution, which was totally unconstitutional one, unwanted one, unwarranted one, and in no nation such things will happen. That happened in India. So friends, Shyama Prasad Mukherjee sacrificed his life, a true academician, a prominent person who was in
who was responsible for the bringing independence and also the bringing a constitution to this country, whose birthday we are celebrating. On this occasion, Mahatma Gandhi Central University organized a program, and we are here to listen Kaushal Kishore Mishra ji and Ram Singh Ara ji, along with our Honorable Vice Chancellor, sir. I hope the message, the work done by the Shama Prasad Mukherjee will definitely go in a long, long way to the younger generation, and he is the person whom we have to remember on this occasion. Thank you one and all for giving me an opportunity. On behalf of the Mahatma Gandhi Central University, I once again extend a warm welcome to the two speakers and other participants, those who are participating in this particular program. Thank you one and all. थैंक यू सो मच सर। बिना समय को गंवाए हम जो है पहले बता दें कि आप सभी लोग अपना कृपया माइक ऑफ रखिएगा पूरे प्रोग्राम के दरमियान। अगर किसी तरह कोई सवाल होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। माइक ऑन करके किसी तरह के सवाल को ना पूछें, बीच में कतई ना पूछें कोई सवाल। हमारे वक्ता के लिए 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले अपने मुख्य वक्ता प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में अपने विचारों और पुराने संस्मरणों से हमें इन्वाइट करने का प्रयास करें। श्री प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी। आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी सर आ रही है सर। आ रही है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में मोतिहारी के आदरणीय कुलपति, हम लोगों के मालिक, हम लोगों के नेता, हम लोगों के अभिभावक, कर्ता धर्ता जो भी मान लीजिए, आदरणीय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, उसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति, हम लोगों के भाई, मित्र, साथी, सहयोगी जो भी मान लीजिए, आदरणीय जी गोपाल रेड्डी जी, इस वेब मंच पर उपस्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के माननीय अध्यापकगण, मेरे विद्यार्थी अंबिकेश बाबू, छोटा विद्यार्थी है, बच्चा है अभी भी, और राम सिंह आड़ा जी जो हमारे भी मित्र हैं। मैं जब गया था उनके यहाँ तो बड़ा सम्मान वगैरह मिलता है, मैं बार बार जाना चाहता हूँ आनंद लेने के लिए, लेकिन बहुत कोरोना के कारण नहीं जा सका। आपने मुझे अपने इस वेब मंच पर आमंत्रित किया। विश्वविद्यालय के इस महान मोतिहारी चंपारण के इस महान विश्वविद्यालय पर के मंच पर मैं आपका आभारी हूं, आपका ऋणी हूं। मैं तो आदेश का पालन करता हूं। जी गोपाल रेड्डी का आदेश आ जाए गर्दन ला काटने के लिए 2 मिनट में कटवा लूंगा। फिर संजीव जी का आप आ जाए गर्दन कटवा लीजिए, कटवा। ये संबंध है, ये डीएनए है, बलिदान का डीएनए है, जिसको परम पूज्य भागवत ने कल कहा था, डीएनए है। तो डीएनए का की मित्रता है, और डीएनए की इस मित्रता के आदेश पर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। आपने जो विषय दिया है, संविधान सभा, कश्मीर मुद्दा एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐतिहासिक संस्मरण, इस विषय के 2 पक्ष हैं। एक तो ये पक्ष है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संविधान सभा और कश्मीर के संदर्भ में क्या योगदान रहा, कश्मीर की आजादी में, कश्मीर के मुद्दे के संदर्भ में उनका योगदान क्या था। और दूसरा उसका पक्ष यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऐतिहासिक संस्मरण हमको करना है। आज उनका जन्मदिवस है, और मुझे लगता है कि कश्मीर और संविधान सभा को थोड़ा सा किनारे किया जाए। आज का जो काल है, आज जिस युग में, जिस काल में, जिस समय पर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऐतिहासिक संस्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनको, वह वास्तव में भारत का ऐतिहासिक दिन है। गोपाल रेड्डी ने मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिर में क्यों भारत के महान पुरुष 52 साल की उम्र में ही तिरोधान हो जाता है। यह बहुत बड़ा तत्व है। विवेकानंद ले लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ले लीजिए, जितने क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, फांसी पर चले, अंग्रेजों से लड़े, सबकी उम्र 52 के आसपास। ये क्या, कौन सा तर्क है? क्या भारत में 52 साल की उम्र की सीमा तैयार कर दी है बलिदानियों के लिए, इतिहास पुरुषों के लिए, पुण्य पुरुषों के लिए, महानुभावों के लिए? यह एक भारत का ऐतिहासिक तत्व है, और इस तत्व पर रिसर्च होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। क्यों 52 साल?
हम भी कभी सोचते थे, मैं जब पढ़ता था विवेकानंद को तो मैंने कभी सोचा कि मेरा भी 52 साल की उम्र में तिरोधान हो जाता तो शायद मैं ऐतिहासिक पुरुष बन जाता, लेकिन नहीं हुआ। हम ऐतिहासिक पुरुष लोग नहीं है, हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं। हम इस देश की माटी के पुत्र हो सकते हैं, मां भारती के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन 52 साल में अपने को बलिदान करने का अवसर हमारे जैसे लाखों लोगों को नहीं मिला जो चाहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने का जन्म 1901 में हुआ। अब 1901 में उनका जन्म हुआ और 1953 में उनका तिरोधान हुआ। 1901 से 1953 के कालखंड का विश्लेषण कीजिए। 1901 में जन्म हुआ, 19 साल के जब हुए तो इस देश के राजनीतिक क्षितिज पर 1920 के आसपास महात्मा गांधी का आविर्भाव होता है, और जब 20 साल के वो होते हैं तो बाल गंगाधर तिलक अपने शबाब पर होते हैं। जब वो 32 साल के होते हैं तो सावरकर आते हैं, और जब 32 हिंदू महासभा में जब वो 32 साल के उम्र में जब हिंदू महासभा के सदस्य बनते हैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष होते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। और 1932 में ही गांधी और अंबेडकर का वैचारिक संघर्ष चलता है, जिसके आधार पर पूना पैक्ट होता है, और वो पूना पैक्ट को हिंदू महासभा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा उसका निराकरण किया जाता है। तो पूना पैक्ट जैसा ऐतिहासिक काल, जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने आज नया आयाम दिया, गांधी के प्राण को बचाया, और जब गांधी का प्राण बच रहा था उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इस देश में थे। तो इस देश में जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई 1920 के बाद, 1920 से 1953 के आसपास, उस घटना के दिग्दर्शक गवाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत के संस्कारों, भारत की संस्कृति, भारत के आविष्कारों, भारत की मूलता, भारत की मातृता का खूब गहन अध्ययन था। लेकिन वो कांग्रेस के सदस्य थे, और कांग्रेस के सदस्य के भीतर उसी समय सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के भीतर सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण थे, लोहिया थे, तमाम तरह की विचारधाराओं का एक समुच्चय कांग्रेस था। उस कांग्रेस के उस तमाम आधुनिक विचारधाराओं के समुच्चय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा एक व्यक्ति, जो हिंदूवादी संस्कृति को लेकर के कांग्रेस के भीतर पल रहा था, बढ़ रहा था, और कांग्रेस को सांस्कृतिक रूप से ढालने का प्रयास करता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही काल में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती, और उनका संबंध हेडगेवार से था, उनका संबंध परम पूज्य गोलवरकर गुरु जी से था, गोलवरकर जी से था। तो ये इस एक व्यक्ति के ऊपर कितने लोगों की साया हुई? एक व्यक्ति के ऊपर सावरकर की साया हुई, एक व्यक्ति के ऊपर हेडगेवार की छाया हुई, एक व्यक्ति के ऊपर गांधी की छाया हुई, एक व्यक्ति के ऊपर तिलक की छाया हुई, और एक व्यक्ति के ऊपर क्रांतिकारी विचारधाराओं की छाया हुई। और उस समय जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक एकेडमिक के रूप में कुलपति थे, एक एकेडमिक के रूप में आगे बढ़ रहे थे, उस समय भी राजनीति में सक्रिय, वे कुलपति थे, वो अकादमिक स्तर पर मजबूत आदमी थे। कौन सा एकेडमिक? आज का ये पाखंडवादी एकेडमिक? कौन सा एकेडमिक? आज का जो है, आज का छत में एकेडमिक नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर भारत की अकादमिक संस्कृति का प्रभाव था, सावरकर का प्रभाव था, तिलक का प्रभाव था, वैदिक संस्कृति का प्रभाव था, दयानंद का प्रभाव था, श्रद्धानंद का प्रभाव था, इनका प्रभाव था। ये प्रभाव कई स्तरों पर बहुआयामी प्रभाव था, और इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो एक राजनीति विज्ञान के अमेरिका से जुड़े हुए हैं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो भी श्रृंखलाबद्ध विचारक रहे हैं, आज तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को एक सामाजिक वैज्ञानिक रूप में, एक सामाजिक विचारक के रूप में स्थान क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल इस मंच से मैं उठाना चाहता हूं। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की धारा नहीं है? क्या अगर नेहरू की धारा है, अगर गांधी की धारा है, अगर तिलक की धारा है, सावरकर की धारा है, अगर इन लोगों की धारा है, तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धारा नहीं है? 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय
उस धारा का प्रतिनिधित्व एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उन्होंने किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में क्यों गए? कांग्रेस के भीतर रह करके भी हिंदू महासभा को उन्होंने माना। इसलिए माना कि उस समय एक तुष्टि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की तीव्रता थी और तमाम तरह की घटनाएं स्वतंत्रता संग्राम में चल रही थी। गांधी का सत्याग्रह भी चल रहा था, क्रांतिकारियों की क्रांति भी चल रही थी, आदिवासियों के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी चल रहा था, ग्रामीण विद्रोह भी चल रहा था, सांस्कृतिक विद्रोह भी चल रहा था, तमाम तरह के विद्रोह चल रहे। इन विद्रोहों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने वैचारिक अधिष्ठान में संयोजित करने का काम किया। यह अद्भुत काम, इसी काम को विवेकानंद ने किया। कलकत्ता के होने के, बंगाल के होने के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सीधे सीधे विवेकानंद की आध्यात्मिक क्रांति का उनके ऊपर प्रभाव था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उनके प्रभाव था, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षणिक क्रांति का उनके ऊपर प्रभाव था, तिलक के उग्र क्रांति का प्रभाव था और गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का भी प्रभाव था। तो ये जो वैचारिक अधिष्ठान है, इस वैचारिक अधिष्ठान के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रतिनिधि के रूप में भी भारत में उपस्थित होते हैं। इस पर शोध क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के एक अध्यक्ष के रूप में उनको पूजा जाना चाहिए? तो नेहरू को क्यों वैचारिक आधार पर उनको पूजा जाना चाहिए? अगर नेहरू को वैचारिक आधार पर पूजा जा रहा है, यदि नेहरू को एक पॉलिटिकल पार्टी से इतर उनके विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी एक धारा है और वह धारा भारत की धारा है, वह धारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा है, वह धारा भारत के अखंड भारत की धारा है, वह धारा देश के एकत्व की धारा है, वह धारा सबका साथ सबका विकास की धारा है, वह धारा आर्थिक उन्नयन की धारा है, वह धारा पुनर्जागरण की धारा है, वह धारा आध्यात्मिक चेतना के पुनर्भवन का धारा। यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर्मवीर थे। जो धारा लेके चलता है वह कर्मवीर होता है। वह एक निरपेक्ष सिद्धांतवादी नहीं थे, सिद्धांत गढ़ दिया मर गए, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने सिद्धांतों को एक राजनीतिक दल के रूप में समाज में प्रवाहित करने का काम किया। यह अद्भुत है। दीनदयाल ने भी यही काम किया, गांधी ने भी यही काम किया, बाल गंगाधर तिलक ने यही काम किया। आप सोचिए कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कहते हैं कि भारत का यश, उनका कोट कर रहा हूं, उनका वचन, भारत का यश उनकी राजनीतिक संस्थाओं और सैनिक शक्ति में नहीं है। भारत का जो यश है उनकी राजनीतिक संस्थाओं और सैनिक शक्ति में नहीं है, बल्कि उनकी आध्यात्मिक महानता, ध्यान दीजिएगा, उनकी आध्यात्मिक महानता, सत्य, आत्म के विचारों से दुखी मानवता की सेवा करना, दुखी मानवता की सेवा करना। फिर आप वही कोट करता हूं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये जो भाव है, ये एक मंत्र है भारत के दर्शन, ये मंत्र है भारत के दर्शन। हम पृथ्वी के सभी मानव के अतिरिक्त अपना सोचते ही नहीं। और आगे कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अभिव्यक्ति सर्वोच्च शक्ति की विराटता में उसके विश्वास पर आधारित। हम सर्वोच्च शक्ति की विराटता में विश्वास करते और सर्वोच्च शक्ति की विराटता संविधान सभा में भी दिखाई पड़ी थी। वो संविधान सभा के बंगाल प्रांत के सदस्य के रूप में चुने गए, बंगाल के प्रोविंस में मंत्री भी थे, लेकिन संविधान सभा में वो एक सदस्य के रूप में बंगाल से थे। और संविधान सभा में अगर आप संविधान सभा के डिबेट को देखें तो उन्होंने डिबेट में जो तर्क का दो चार तर्क दिए हैं, वो तर्क क्या है? भारतीयता से लबरेज तर्क। कश्मीर के संदर्भ में जब उन्होंने कश्मीर के संदर्भ में ये कहा, गोपाल रेड्डी जी ने कहा कि एक देश में दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। मतलब क्या हुआ? क्या कश्मीर भारत का अंग उस समय नहीं था? हरि सिंह के समझौते के बाद कश्मीर भारत से अलग था। क्या आज भी कश्मीर का भारत का अंग नहीं है? जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया है वो भारत का अंग नहीं है? और पूरा पाकिस्तान भारत का अंग नहीं है? क्या पाकिस्तान हवा में उड़ के आया? हमारी दुर्नीतियों ने हमको पाकिस्तान के रूप में राष्ट्र दे दिया।
उसकी भूमि क्या है? पाकिस्तान की भूमि तो 1947 के पहले भारत की ही तो भूमि थी, लेकिन विभाजित हुई। तो अखंड भारत का जो संकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की, अखंड भारत की संकल्पना जो जिसका समर्थन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, वो उनके विचार का अधिष्ठान नहीं है। हो ना हो, लेकिन विचार करने में हमारा क्या बिगड़ता है? शोध करने में उस पर क्या बिगड़ता है? हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, विवेकानंद, दीनदयाल उपाध्याय पर शोध करने से क्यों कतराते हैं? ये सवाल इस मंच से मैं उठाता हूं। क्यों? या तो आपको जानकारी नहीं है, या तो आप भारतीयता को मुझसे मुंह मोड़ना चाहते हैं। आपको आसान चीजें मिलती हैं, आपको लगता है कि दीनदयाल जी कठिन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कठिन है, तिलक भी कठिन है, गांधी भी कठिन है, सावरकर भी कठिन है। तो कठिनाई से भागने वाला भारतीय कैसे होगा? ये सवाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दर्शन से आता है। 30 जनवरी 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदेश से हिंदू महासभा के कार्यकर्ता सामने आए, उग्रता उन्होंने दिखाई। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गांधी के प्रति समर्पण की बात देखिए। उन्होंने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से कहा कि हिंदू महासभा के राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी राजनीतिक गतिविधियों को बंद कर दे, क्योंकि एक महान पुरुष की हत्या हुई। 24 नवंबर 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वयं हिंदू महासभा से त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको पीड़ा हुई। गांधी की हत्या नहीं होनी चाहिए। गांधी एक विराट पुरुष थे। गांधी भारतीय संस्कृति के एक समुच्चय हैं। गांधी ने हिंदुत्व को एकीकृत करने के लिए अपनी जान बलिवेदी पर डाल दिया। और उस गांधी की हत्या होना, उस समय 1948 में देश का हर नागरिक, चाहे किसी भी विचारधारा का हो, दुखी था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्याग पत्र दे दिया। 29 दिसंबर 1948 को उन्होंने महासभा के राजनीतिक मामलों में फिर से भाग लेना शुरू किया। मतलब हिंदुत्व का प्रवाह उनके दिल दिमाग पर था। और संविधान सभा में भी उन्होंने हिंदुत्व का ही पक्ष रखा। कश्मीर के संदर्भ में, कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में एक विधान नहीं चलेगा, 2 विधान क्यों चले भाई? 2 झंडे भारत में क्यों चले? क्यों चले 2 झंडे? भारत एक है तो भारत में एक झंडा होना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि भारत अखंड है, उसकी विचारधारा अखंड है। भौगोलिक रूप से भले उसका खंडन हुआ, लेकिन उसकी विचारधारा को आप खंडित नहीं कर सकते। क्यों? उसकी विचारधारा सहिष्णुता की विचारधारा, उसकी विचारधारा मानवता की विचारधारा, उसकी विचारधारा रंग भेद के खिलाफ विचारधारा, उसकी विचारधारा समता की विचारधारा, उसकी विचारधारा स्वतंत्रता की विचारधारा, उसकी विचारधारा सबको समेटने की विचारधारा है। और यह विचारधारा ही विराट कहा जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विराट दर्शन में अपने को, विराट दर्शन के अंग के रूप में अपने को प्रस्तुत करने का व्याप्त किया। आर्थिक मामलों में अगर आप देखिए तो वो भारत में उस काल में हिंदू क्या, सांस्कृतिक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उभर करके सामने आते हैं। और पाकिस्तान के प्रति उन्होंने इसलिए कठोर नीति का समर्थन किया कि पाकिस्तान का विभाजन हमारी छाती पर रख करके करने के लिए बाध्य किया गया। और आज तक उसको हम लोग 70 सालों के बाद भी उस विभाजन का दंश झेल रहे हैं। आज भी आतंकवादियों से हम त्रस्त हैं। कश्मीर में धारा 370 का नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े साहस से दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बनाने के लिए इतना साहसपूर्ण कदम लिया कि उन्होंने धारा 370 को कश्मीर से हटाया। और 370 भारतीय जनसंघ का जो उसका एजेंडा था, भारतीय जनसंघ का, वह 370 का हटना ही उसका एजेंडा। और भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी तो 370 से उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारणा भी 370। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, कल आप इसी संदर्भ में परम पूज्य मोहन भागवत जी ने क्या कह दिया कि डीएनए सबका है।
इसमें अपराध क्या कह दिया? अरे भाई डीएनए सबका एक नहीं तो डीएनए की जांच करा लो, हमारा भी डीएनए का जांच करा लो, अन्य लोगों का भी डीएनए का जांच करा लो, इसमें दिक्कत क्या है? इस पर भी बौखलाहट। भारत में रहने वाले हर भारतीय का डीएनए समान है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह भाव, सबका साथ सबका विकास, यह क्या है? एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, यही इसका भाव है। इसलिए कि हिंदू जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है, वो विभाजनकारी नहीं है। भारत की संस्कृति समन्वयवादी, संस्कृतिवादी, संस्कारवादी है, पारिवारिक एकजुटता की वारी है और राष्ट्रीय एकता की का आधार है। राष्ट्रीय एकता चाहता है और हमने राजनीतिक एकता की को सेकंड ग्रेड पर रखा। हमने सांस्कृतिक एकता की बात, हमने मेलों के माध्यम से एकता की धारणा को पुष्ट की। शंकराचार्य ने भगवान शिव के लिंग के माध्यम से एकता की धारणा है। हमारा दुनिया में, भारत में जितने भी सांस्कृतिक अधिष्ठान है, सब असांस्कृतिक अधिष्ठान एकीकृत भारत का सपना दिखाते, एकीकृत भारत को के मूल्य को स्थापित करते दिखाई पड़ते। और इस बात को श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वीकार करते हैं। 1957 के चुनाव में लोकसभा में 4 और राज्यों में विधानसभाओं में जो 46 स्थान प्राप्त किए, उस समय 1900 भारतीय जनता, वो किसकी देन थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन थी, क्योंकि वो चाहते थे कि नेहरूवादी जो विचारधारा, खिचड़ी विचारधारा जो नेहरूवाद की है, उसके विकल्प में भारत में एक भारतीयता की विचारधारा का राजनीतिक दल होना चाहिए। और भारतीयता की विचारधारा का राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर परम पूज्य गोलवलकर जी के निर्देश पर या संघ के निर्देश पर, मान लीजिए, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मतलब भारतीय जनसंघ की स्थापना बंगाल के नेता ने की। और कश्मीर का मुद्दा, जो सबसे पहले नागा कश्मीर का मुद्दा, जो पहला जनसंघ का अधिवेशन हुआ था, वो कानपुर में हुआ था। अब देखिए, मजा देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में कश्मीर को एक करने का नारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी देते हैं और वहां दीनदयाल जी भी बैठे रहते। और जनसंघ की स्थापना बंगाल के नेता के रूप में होती है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज के दिन को ऐतिहासिक संस्मरण करना है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वर्षों बाद जो सपना आया कि बंगाल में एक विकल्प के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो दल है, जनसंघ का परिवर्तित रूप भारतीय जनता पार्टी है, वह उभर के सामने और आया। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति समर्पित है। कुछ उनके कदमों में पुष्प है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए सैनिकीकरण, सैनिक को मजबूत करने की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दर्शन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लोकतंत्र में आस्था थी, इसलिए उन्होंने संविधान सभा में सदस्यता ग्रहण की और नेहरू से कई बार उनके टकराहट हुए। उन्होंने नेहरू से टकराहट के माध्यम से ही कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। नेहरू के विचार खिचड़ी विचार हैं। हम मानते हैं, हमारे जैसे लोग मानते हैं कि नेहरू के विचार कितने परिपक्व समाजवादी हैं, नेहरू के विचार कितने परिपक्व लोकतंत्रवादी हैं, कितने परिपक्व संविधानवादी हैं, नेहरू के विचार कितने भारतीयता से प्रतिपोषक हैं। इस बात पर भी सोच होना चाहिए। हम नेहरू का सम्मान करते हैं, नेहरू हमारे देश के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान है, लेकिन वैचारिक रूप से हम नेहरू के भारत की खोज, अगर आप भारत की खोज पढ़ें तो आपको भारतीय संस्कृति का दोहरापन नजर आएगा। हम दोहरे नहीं हैं, हम एकीकृत के प्रतीक हैं, हम एकीकृतता के लोग हैं, हम समरसता और सामंजस्य के लोग हैं। हमारे लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए मन महत्व, चित्त महत्वपूर्ण, जिसको दीनदयाल जी कहते हैं चित्त। और दीनदयाल उपाध्याय की जो चित्त है, जो चित्त की परिभाषा है, उस चित्त की परिभाषा के नेतृत्व करता अगर कोई है तो उस काल में 1951, 52, 53 के काल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। उनके ऊपर बुद्ध का प्रभाव पड़ा। अगर बुद्ध का प्रभाव उनके ऊपर ना पड़ता तो भारतीय सभा में शांति के अस्तित्व की बात वो न करते। अगर उनके ऊपर बुद्ध का प्रभाव नहीं पड़ता
तो कश्मीर के मुद्दे को शांतिपूर्ण रूप से निपटाने की बात न करते, लेकिन दुर्भाग्य से जेल में उनका निधन हुआ, कश्मीर को बचाने में उनका निधन हुआ और आज तक उनके निधन की गुत्थी नहीं सुलझी। जैसे दीनदयाल उपाध्याय के निधन की गुत्थी नहीं सुलझी, उसी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन, जेल में मरने से निधन से उसकी गुत्थी नहीं सुलझी। अब आप देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भगवान बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्गों का प्रशंसा की। भगवान बुद्ध शांति का संदेश देते हैं, भगवान बुद्ध एकीकृत का संदेश देते हैं, भगवान बुद्ध उस पाखंडवाद को तोड़ने का प्रयास करते हैं और भगवान बुद्ध के आधार पर एशिया के राष्ट्रों के बीच में एकता की बात भगवान बुद्ध के दर्शन से निकलती है। एशिया के राष्ट्रों में क्यों नहीं होना चाहिए? एशिया, यूरोप के देशों में एकत्व होकर के यूरोपीय पुनर्जागरण होता है, तो क्या एशिया के देशों में एकीकृत होकर के एशियाई पुनर्जागरण नहीं हो सकता? श्यामा प्रसाद मुखर्जी एशियाई पुनर्जागरण के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने 5वें आर्य सम्मेलन जो दयानंद का, मैंने पहले कहा था कि दयानंद का उनके ऊपर प्रभाव था, उन्होंने उसमें कहा कि व्यक्ति, समूह, दल भारत की स्वाधीनता के लिए प्रतिबद्ध, हमारी अखंडता, हमारी संप्रभुता, हमारी एकबद्धता, हमारी समरसता और हमारा सांस्कृतिक मन, यह भारत के राजनीतिक चिंतन का आधार होना चाहिए। अगर आज वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते तो राम जन्मभूमि के इस निर्णय पर अयोध्या में मंदिर के निर्माण को सिर्फ एक मात्र मंदिर के निर्माण की बात के रूप में नहीं सोचते, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक क्रांति के रूप में उसको व्याख्यायित कर। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक क्रांति है इस देश में, उसका असर दूर तक जाएगा, उसको समझने की जरूरत है। जब बन जाएगा तो उसका सांस्कृतिक असर पूरी दुनिया में जाएगा और उसका सांस्कृतिक असर एशियाई जागरण और एशियाई एकता का आधार भी बन सकता है। क्यों नहीं नेपाल बनेगा? क्यों नहीं श्रीलंका में बनेगा? क्यों नहीं म्यांमार में रामायण का प्रभाव कहां नहीं है? चीन में भी रामायण का प्रभाव। तो ये सारा जो तत्व है, ये सारा तत्व जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संवैधानिक दृष्टिकोण और कश्मीर के प्रति, कश्मीर को स्वतंत्र कराने और कश्मीर को भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में एकजुट करने के लिए एक दार्शनिक आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा की नीतियां हैं कैसी होनी चाहिए? क्या अंग्रेजियत की शिक्षा की नीति ठीक है? आपकी भारतीय भाषाओं की शिक्षा नीतियां ठीक नहीं है? बंगाल में बंगाली भाषा में अगर कोई पढ़ता है तो अपराध कर रहा है, आदिवासी भाषा में कोई पढ़ता है तो अपराध कर रहा है, मैथिली भाषा में कोई पढ़ता है तो अपराध कर रहा है इस देश में। तो भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण, राज्यों का निर्माण, ये कौन सा तर्क था? जनसंघ ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का जब विरोध किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जनसंघ के निर्माण के समय का दृष्टिकोण था, वह दृष्टिकोण सामने आता है। परमानंद की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक परमानंद है, परम आनंद, भारत का हर महापुरुष परम आनंद का प्रतीक है। हम आनंद की खोज करते हैं, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, हम क्रांति में आनंद समझते हैं, हम बलिदान में आनंद समझते हैं, हम दर्शन की व्याख्या में आनंद समझते हैं, हम ऋत की व्याख्या में आनंद समझते हैं, हम गंगा स्नान में आनंद समझते हैं, हम मंत्र के उच्चारण में आनंद समझते हैं, हम तनाव मुक्त रह करके आनंद। और यही कारण है कि आज दुनिया भारत के परमानंदवादी दृष्टिकोण का आज दुनिया को पता चला। क्यों? क्योंकि ये कोविड का महामारी का भयानक काल उन भौतिकवादियों के गाल पर तमाचे के रूप में आया, जहां लाखों करोड़ों लोग मर गए विभिन्न साधनों के अनुसार, और भारत अपने सीमित साधनों से, परमानंद के माध्यम से, आत्मबल के माध्यम से, आत्मविवेक के माध्यम से, सहृदयता के माध्यम से, समरसता के माध्यम से, एकजुटता के माध्यम से कोविड जैसे इस महामारी पर विजय पाने में सफल रहा। इसको समझने की जरूरत। कोविड मजाक नहीं है, लाखों लोग मर गए। हम तो, हमारे यहाँ जो स्थिति है, हमारे यहाँ जो संसाधनों का संकट था, वो संसाधनों के संकट से करोड़ों लोगों को मरना चाहिए।
लेकिन नहीं मरे। इसको किसी सरकार ने नहीं बचाया, इसको हमने बचाया, परमानंद ने बचाया। हम तनाव मुक्त रहे, हमारी इम्यूनिटी परमानंद से बढ़ती रही और हम कोविड जैसे राक्षस को खा गए। दुनिया ने इसको देखा। अब संघर्ष की बात छोड़िए, परमानंद तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी परमानंद की स्थिति में पंजाब और बंगाल के राजनीति में सहृदयता की बात करते हैं। उन्होंने मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव, कौन से मुसलमानों? जो आतंकवादी मुसलमान है, जो भारत को तोड़ने वाले मुसलमान है, जो भारत को विखेरने वाले मुसलमान है, उन मुसलमानों को के बढ़ते प्रभाव से उस समय व्यग्रता व्यक्त की थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो आप कल्पना करिए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा भारत के विभाजन का। इसलिए वो व्यग्र रहते थे। वो एक देशभक्त थे। देशभक्त और राष्ट्रवाद दोनों में बहुत समानता ही है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मेरी देशभक्त को कोई चुनौती नहीं दे सकता, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि किसी राष्ट्र का नैतिकता के सिद्धांत प्रतिपादित करने एवं उसकी रक्षा हेतु कदम बढ़ाने वाले पहले भौतिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहिए और पर्याप्त सैन्य शक्ति तैयार करने के पहले अपने को नैतिक घोषित करना चाहिए। भारत नैतिकता का समर्थक है और गांधी की नैतिकता ने दुनिया को हिला के रख दिया। भारत के गांधी की नैतिकता ने अंग्रेज जैसे महान शासक को, जिसका सूरज अस्त नहीं होता, उखाड़ के फेंक दिया। नैतिकता हमारी ताकत, और उस नैतिकता की ताकत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने देश की एकता के लिए आगे बढ़ाने का। उनका एक और प्रमुख वाक्य है, हम उन्नति करेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक देश में रहेंगे जिसका भाग्य केवल बच्चों के हाथ में होगा, पीढ़ी के हाथ में होगा। स्वतंत्र हिंदुस्तान का झंडा हमेशा शांति और प्रगति का झंडा होगा। सहनशीलता और आजादी की प्रतिष्ठा की घोषणा करेंगे। हमारा आजादी सहनशीलता पर आधारित है, हमारा संविधान सहनशीलता पर आधारित है। हमने कश्मीर पर बलिदानी नहीं, सहनशीलता के आधार पर आगे बढ़ाया। अब क्या हमारा 20 मिनट हो गया और आगे चलें? अब तो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, हमको आपने बंधन में बांध दिया। गोपाल जी, अगर आप छोड़ देंगे तो मैं 2 घंटा बोलूंगा कम से कम, फिर हमको डिस्टर्ब मत करिएगा। 10 मिनट में खत्म करिए, 10 मिनट में खत्म करिए। 10 मिनट में जी, बस 10 ही मिनट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परंपरा का यह धूल 10 मिनट में नहीं मानता, यह आंदोलन के उस क्रांति की ज्वाला को मानता है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ के रूप में प्रतिस्थापित करने का काम फिजिकल मीटिंग अरेंज का समय दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस परमानंद की बात की, वो परमानंद क्या है? परमानंद राजनीतिक भी है, परमानंद आर्थिक भी है, परमानंद सांस्कृतिक भी है, परमानंद पारिवारिक भी है, परमानंद वैश्विक भी है। आनंद, आखिर में लोकतंत्र की स्थापना किस बात के लिए होती है? जनता के आनंद के लिए। आनंद किसमें होगी? जब विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये परमानंद की स्थिति है। समरसता, ये परमानंद की स्थिति है। भारतीय संस्कृति की एकत्वता, ये परमानंद की स्थिति है। हम वैश्विक परमानंद की स्थिति की बात करते हैं। एक नया कंसेप्ट है, हम एक किताब देख रहे थे, हिंदुइज्म इन वर्ल्ड, उसमें एक परमानंद की तरह एक बात है कि विश्व में परमानंद स्थापित है भारतीय है। तो भारत का वो आनंद खो कहां गया? भारत का आनंद इस झंझावातों में कहां गुम हो गया? इसलिए इसके जिम्मेदार कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कश्मीर के संदर्भ में कि कश्मीर का भारत में विलय कैसे होगा। उनका वाक्य मैं पढ़ रहा हूं, क्या कश्मीर एक गणतंत्र के अंदर दूसरा गणतंत्र बनने जा रहा है? ये सवाल है। उन्होंने उठाया था 51-52 में जनसंघ के पहले अधिवेशन में कि क्या कश्मीर भारत के गणतंत्र में दूसरा गणतंत्र बनने जा रहा है? क्या हम इस प्रभुत्व संपन्न संसद के अतिरिक्त भारत की सीमा के अंदर एक और प्रभुत्व संपन्न संसद बनाने की सोच रहे हैं? विखंडन। उन्होंने चेतावनी दी कि आप अगर तूफान से खेलना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हम असमर्थ और शेख अब्दुल्ला को उसकी मनमर्जी करने दे,
तब कश्मीर को हम खो बैठेंगे। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहूंगा कि हम कश्मीर को खोने नहीं देंगे, भले ही मेरा जीवन खत्म हो जाए। तो कश्मीर को उन्होंने खोने नहीं दिया अपने जीवन की इतिश्री करके। ये बलिदान है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का पुष्प नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 को हटा के दिया है। यह उसकी एक उपयोगिता है। यह बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय एक और बात कही थी। भारत के नेहरू को उन्होंने कहा था, भारत के प्रधानमंत्री को साफ साफ बोलना चाहिए। मतलब कि भारत का उस समय का प्रधानमंत्री झूठ बोलता था। नेहरू के झूठ का उन्होंने पर्दाफाश किया। और अगर भारत में नेहरूवाद की विचारधारा वर्षों तक चली तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाद की भाषा भारत में क्यों नहीं चल सकती? हमारा हम आप कहते हैं बहुत सांस्कृतिक बहुवैचारिक देश है, तो हमारा चलना चाहिए। इसलिए नहीं चलते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वैचारिक अधिष्ठान भारतीय अधिष्ठान है। वह पश्चिम के विचारों को एक चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हम चुनौती करता है, हम आग्रह करता नहीं है। हम उन विचारों को, उन भावनाओं के भिखमंगे नहीं है। मालवीय जी ने यही कहा था कि प्रतीच प्राची का मेल सुंदर, प्रतीच भी चाहिए, प्राची भी चाहिए, और हमको अपना चाहिए। हम स्वदेशी भाव को लेकर के चलेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि नेहरू सुनो, कि हम इस प्रकार की कश्मीरी राष्ट्रीयता नहीं चाहते जो आप देना चाहते हो शेख अब्दुल्ला के माध्यम से। हम इस प्रभुत्व संपन्न कश्मीर के विचार को नहीं चाहते। अगर आप कश्मीर के बारे में ऐसा कहते हैं तो आपकी रियासतें आपका साथ छोड़ देंगी। ये बात है श्यामा प्रसाद ने, एकत्व की बात। और इसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसी को दोहराते हैं। आप दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तुलनात्मक अध्ययन करिए। इसी बात को दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य का भारत में विलय के मुद्दे को ऐसे अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस राज्य का शेष भारत में विलय और जम्मू और लद्दाख के क्षेत्रों को कश्मीर घाटी में विलय का प्रश्न शीघ्रातिशीघ्र अंतिम निर्णय के रूप में प्रकट करना है। अंतिम, और जिस अंतिम निर्णय की बात दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं, वह अंतिम निर्णय वर्षों बाद, 60-70 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंतिम निर्णय कर दिया। और कश्मीर को किस तरह से भारत के साथ मिलाया, आज सीमांकन कश्मीर में होगा। कश्मीर एक अलग स्टेट भी बनेगा। लद्दाख एक स्वायत्त शासी के रूप में राज्य भी बन सकता है। जम्मू में सीमांकन करके विधानसभा लोकतांत्रिक व्यक्ति की रक्षा, जिस तरह गुपकार का जो गुपकार लोग हैं गुप गुप कर रहे थे, उन गुपकार के गुप गुप को तोड़ने का काम भारत सरकार ने किया। वह कश्मीर के उस बात को संकेत करता है कि अंतिम परिणति तक हम कश्मीर में पहुंच गए हैं। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक बात कहते हैं, हमारा एकमात्र अस्त्र जनमत है। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम निरंकुश ऑटोक्रेटिक लोग नहीं है, हम निरंकुश नहीं है, हम किसी को दबा करके नहीं करना चाहते। हमारा अस्त्र जनमत है, लोकतंत्र है। और हम अपनी बात समझाने का हमने बहुत प्रयास किया, बार बार किया। मैं केवल यह आशा करता हूं कि लोकमत अपना असर डालेगा और नेहरू को अपनी वर्तमान नीति को बदलने को बाध्य करेगा, जिससे वह पाकिस्तान स्वीकारने जैसी भयंकर भूल की पुनरावृत्ति न कर सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डर था कि पाकिस्तान को बांटने का जो भयंकर भूल हुआ है, कहीं यह भूल आगे ना हो जाए। इसलिए भारत में विखंडनवादी ताकतों का, कांग्रेस जैसी ताकतें उसका समर्थन करती। हम तो डर गए हैं। पाकिस्तान हमारा है, उसकी भूमि हमारी है। अगर पाकिस्तान जब मुसलमान 400 साल 500 साल पहले नहीं थे, तो आखिर में पाकिस्तान की भूमि पर ऋषि नहीं पैदा हुए थे। पाकिस्तान की भूमि पर सांस्कृतिक अधिष्ठान नहीं होते थे। लेकिन हमने भूल कर दिया, और यह भूल हमारे लिए कंटक बन गया, और यह कंटक कश्मीर के लिए कंटक बन। तो भारत का जो आपने जो विषय दिया, संविधान सभा और कश्मीर का मुद्दा, इसको आप एक राजनीतिक आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में नहीं समझ सकते। इस मुद्दे को सांस्कृतिक रूप में, वैचारिक अधिष्ठान के रूप में, शंकराचार्य के उस मूल तत्व के अखंडता के रूप में, दीनदयाल के एकत्वता के रूप में जोड़कर ही समझा जा सकता है। आपने हमें समय दिया, बोलने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बहुत अधिक है,
अभी तो मैंने संदर्भ लेना शुरू किया था, मेरे पास संदर्भों की सूची है और उस संदर्भों की सूची में एक अंतिम संदर्भ मैं आप कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि भारत के लोग कोई भी काम गंभीरता से करते हैं, भारत के लोग कोई भी काम पूर्णता से करते हैं, भारत के लोग कोई काम आधा अधूरा नहीं छोड़ते, भले देर हो जाए, भले काल बीत जाए, युग बीत जाए, लेकिन अंत में भारतीयता की ही विजय होती है, हिंदुत्व की ही विजय होती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विजय होती है। और मुझे विश्वास है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के माध्यम से, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, जिन राष्ट्र नीतियों को, जिस राष्ट्र के एकत्व की नीतियों को, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीतियों का नींव रखा, उस कदम पर भारत अब बढ़ चला है। अब भारत को पीछे लौटने का कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी आर्थिक उन्नति भी, जब कोरोना जैसी महामारी को भारत झेल गया, लोगों को बचा लिया, इससे बड़ा महामारी नहीं हो सकता, इससे बड़ा संकट नहीं हो सकता, तब भारत को आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। ज्ञान की परंपरा के क्षेत्र में, विज्ञान की परंपरा के क्षेत्र में, संस्कृति की परंपरा के क्षेत्र में, वैदिक विकास की परंपरा के क्षेत्र में और वैश्विक एकता की परंपरा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना है। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा के चरणों में नतमस्तक, गोपाल रेड्डी के चरणों में नतमस्तक। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर। भारतीयता के विराट दर्शन से लबरेज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे और उनका जो संपूर्ण चिंतन था वो समन्वयकारी था, जिसका एक स्पष्ट झलक एक विभाजनकारी अनुच्छेद 370 में के विरोध में दिखाई पड़ता है। हम विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर राम सिंह आढ़ा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को आमंत्रित करते हैं कि वो इस मंच पर अपना विचार रखें। प्रोफेसर राम सिंह आढ़ा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के माननीय कुलपति परम श्रद्धेय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी जी, हमारे सबके आदरणीय और मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे वक्ता मुख्य अतिथि प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी, इस विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर राजीव कुमार जी, जुगल जी, प्रोफेसर सुनील महावर जी और कार्यक्रम के समन्वयक अंबिकेश कुमार जी त्रिपाठी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके सर। मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का, विशेष तौर से माननीय कुलपति महोदय का, कि मुझे इस अवसर पर प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी को सुनने का और प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी जी और स्वयं संजीव शर्मा जी के इस वेब मंच से दर्शन होने के लिए मैं आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। ये जो संगोष्ठी, ये जो विचार इस वेब मंच से जो जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी ने संविधान सभा और कश्मीर मुद्दे के बीच में मुझे लगता है कि हाइफन रखा, और मैं चाहता हूं कि संविधान सभा कौमा और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की जाए। साथियों, हमने संविधान निर्माण के संदर्भ में जो कुछ भी देखा पढ़ा है वो अधिकांशतः 4 नवंबर 1948 की बैठक के पश्चात से संविधान निर्माण की जो चर्चा होती है, संविधान के निर्माण में जो डिबेट चलती रही, यानी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो रखा गया उसके पश्चात की जो चर्चा होती है, अक्सर हमारा फोकस उस पर रहता है। और हम देखते हैं कि 4 नवंबर 1948 के पश्चात संविधान सभा में जिस प्रकार से माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से हमको लाभान्वित होना चाहिए था, हम उससे वंचित रह गए। हमको संविधान निर्माण के इस पूरी प्रक्रिया में 2-3 भाग में देखना होगा, 2-3 चरणों में देखना होगा कि ऐसा क्या कारण रहा कि जिन माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चिंतन को प्रखरता से, प्रमुखता से
हमने प्रारंभिक समय में संविधान सभा में या संविधान सभा की विभिन्न समितियों में देखा, वो बाद में हमको देखने को नहीं मिला। इसके पीछे उस समय की भारत की जो परिस्थिति और पृष्ठभूमि थी, उसका सबसे बड़ा प्रभाव रहा। संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी, इस पर जब हम चर्चा करते हैं या इस पर अगर हम विचार करते हैं, तो हमको सबसे पहले संविधान सभा की जो समितियां जो गठित की गई थी, उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल रहा है, उसको हमको देखना होगा। और यदि हम संविधान सभा की समितियों में श्यामा प्रसाद जी के चिंतन को देखते हैं, तो हमको लगता है कि यदि श्यामा प्रसाद जी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के कारण भारत की उस समय की आवश्यकता और अनिवार्यता, जो उनको राष्ट्रीय अस्मिता के लिए आवश्यक लगी, उसमें जो उन्होंने समय दिया, यदि वही समय इस संविधान निर्माण के लिए कहा दिया जाता, तो आधुनिक भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को हम चिर निरंतर याद ही नहीं रखते, वरन ये देश, जैसा कि परमादरणीय कौशल किशोर मिश्रा जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का जो भाव है, वो यदि हमको कहीं देखने को मिलता है, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चिंतन के माध्यम से मिलता है। मैं थोड़ा सा उस पृष्ठभूमि पर यदि प्रकाश डालने का प्रयास करूं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान निर्माण की 2 महत्वपूर्ण समितियां थी। अच्छा, एक बात और बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, और बात स्पष्ट ये हो जाती है कि संविधान के निर्माण का जो मौलिक कार्य है, वो पहले ही हो चुका था। पहले होने का तात्पर्य है कि जो मुख्य रूप से जो संविधान सभा की समितियों का निर्माण किया गया था और उनमें जो विचार किया गया, उनमें जो खाका तैयार किया गया था, वही खाका बाद में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया गया, और उसी के इर्द गिर्द ही बाद में संविधान सभा की डिबेट्स हुई। तो हमको यदि संविधान के संदर्भ में श्यामा प्रसाद जी के विचारों को देखना है, तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि संविधान सभा की जो एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स, उस पर श्यामा प्रसाद जी एक सदस्य के रूप में थे। और इतना ही नहीं, श्यामा प्रसाद जी एडवाइजरी कमेटी के सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज थी, उसके वे सदस्य थे। और सब कमेटी जो माइनॉरिटीज के लिए जो सब कमेटी थी, उसमें श्यामा प्रसाद जी ने जिस रूप में चिंतन दिया, हमारे सामने जो एक पक्ष रखा जाता है श्यामा प्रसाद जी के संदर्भ में, कि श्यामा प्रसाद जी केवल एक समुदाय विशेष तक या कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने विचार रखते थे, शायद इस बात का पूरी तरह से खंडन हो जाता है यदि हम संविधान सभा की माइनॉरिटी सब कमेटी में श्यामा प्रसाद जी के रोल को देखें, यदि हम उन प्रोसीडिंग्स को देखें, यदि वहां के मिनट्स को देखें, और जिस प्रकार से एक एक क्लॉज पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इतनी गहनता से, उतनी व्यापकता से चिंतन दिया, वो शायद हो सकता है, शायद केवल कि अभी तक आज 70-72 साल में भी वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो सका। मैं एक छोटा सा उदाहरण के रूप में एक दृष्टांत आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जब माइनॉरिटी सब कमेटी में अनटचेबिलिटी पर विचार आया, तो ये श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन कीजिए। और ना तो उस समय संविधान निर्माता और ना उसके पश्चात भारत सरकार आज दिन तक अनटचेबिलिटी शब्द को डिफाइन नहीं कर पाई। हमने अनटचेबिलिटी को मान लिया, हम मानते हैं अनटचेबिलिटी क्या है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय ही इस प्रश्न को उठाया। यदि उस समय हम इस पर व्यापकता से विचार विमर्श करते, तो हो सकता है जो समय समय पर जो वैचारिक मतभेद कई बार हम लोगों के समाज में जो देखने को मिलता है, शायद वो देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नहीं थे। दरअसल होता यह है कि जैसे ही हम मानते हैं कि माइनॉरिटी सब कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स की थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सदस्य के रूप में एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया संविधान सभा द्वारा, तो हम ये मान लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अल्पसंख्यकों के विरोध में ही बोलेंगे, या श्यामा प्रसाद जी वो व्यक्ति हैं जो हमेशा केवल हिंदू राइट्स के लिए ही हिंदू राइट्स के लिए खड़े होने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निर्वाचन आयोग के गठन के संदर्भ में जब चर्चा हुई फंडामेंटल राइट्स के समय में, माइनॉरिटीज
माइनॉरिटी सब कमेटी में जब ये चर्चा आई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय में एक पक्ष रखा कि अल्पसंख्यकों को भी यथोचित स्थान दिया जाए। और यही कारण था कि जब वो ड्राफ्ट तैयार हुआ माइनॉरिटी सब कमेटी का, तो उस समय में उसमें इस निर्वाचन आयोग को सब जुडिशियल बनाने का या क्वेसी जुडिशियल बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। ये इसका कारण यही था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि अल्पसंख्यकों को भी उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए। कई ऐसी समस्याएं जो व्यवहारिक तौर पर बाद में भारत महसूस करता रहा या भारत उससे निरंतर निपटने के लिए संघर्षरत रहा, ऐसे विषयों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस माइनॉरिटी सब कमेटी में बहुत ही सटीक और सही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, एक क्लॉज था उस समय उस सब कमेटीज के ड्राफ्ट में, क्लॉज 17, और वो जो क्लॉज 17 था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये जो पूजा स्थल जो जगह जगह जो अनुचित तरीके से बनाए गए हैं, ये यदि दूसरों के अधिकारों का खंडन करते, ये दूसरों के अधिकारों का वायलेशन करते हैं, तो एक तो इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। और इससे ज्यादा व्यापकता चिंतन में क्या हो सकती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि राइट टू रिपेयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप शुड बी गारंटीड। मैं समझता हूं इतनी व्यापकता और इतनी सूक्ष्मता के साथ यदि कोई चिंतन दे सकता है तो वो परमादरणीय स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये जो 17, 18, 19 अप्रैल की मुख्य रूप से बैठक है जिसमें माइनॉरिटी सब कमेटी की, लेकिन बाद में जब एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हुई फंडामेंटल राइट्स की, उस समय में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कई ऐसे विषय थे जिन पर बड़ी व्यापकता से विषय को प्रस्तुत करने का या लोगों के बीच में विषय रखने का प्रयास किया। इसमें एक बात और आई थी और वो थी सांप्रदायिक घृणा के संदर्भ में। कई ऐसे संविधान सभा के कई ऐसे सदस्य थे जो सांप्रदायिक घृणा शब्द को सम्मिलित करना चाह रहे थे फंडामेंटल राइट्स में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनॉरिटीज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसकी व्यापकता को देखते हुए, उसके भविष्य को देखते हुए दूरदर्शिता से ये विचार प्रस्तुत वहां रखा कि यदि सांप्रदायिक घृणा शब्द को संविधान में स्थान दिया जाएगा तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने की पूरी संभावना रहेगी। और न केवल उन्होंने इस बात का लोगों के सामने ये पक्ष रखा, अपितु इस बात का विरोध भी किया कि इस शब्द का किसी भी रूप में संविधान में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि यदि सांप्रदायिक घृणा शब्द को प्रयोग करेंगे तो हो सकता है जो सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी है वो इसका दुरुपयोग करेगी और जो विपक्षी पार्टी है उन पर सदैव इस प्रकार का आक्षेप लगता रहेगा। और हमने देखा है कि जो लंबे समय तक भारत में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल रहे, उन्होंने इस शब्द का दुरुपयोग करते हुए लोगों के बीच में हमेशा गैप पैदा करने का, वैमनस्यता का भाव पैदा करने का निरंतर प्रयास किया। और शायद हो सकता है कि हमारे बीच में जो सांप्रदायिक जो वैमनस्यता का जो भाव है उसके पीछे कहीं न कहीं ये जो उस समय के तात्कालिक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल रहे, उनके मन में कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा रही है। ठीक इसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए वयस्क मताधिकार की बात आती है और हम वयस्क मताधिकार के लिए हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री या ये कहें कि उस समय के जो जिनको प्रमुख हमने नेता माना, उन संविधान सभा के प्रखर प्रमुख ने जो जिनको हमने सदस्य माना, उनके पक्ष की बात कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वयस्क मताधिकार का समर्थन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस प्रारंभिक स्थिति में ही वयस्क मताधिकार को मूल अधिकारों में स्थान देना चाहते थे। और सबसे खूबसूरत बात इस बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस दृष्टिकोण का डॉक्टर अंबेडकर ने समर्थन किया। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये वो जो प्रोसीडिंग्स है उनकी प्रोसीडिंग्स में ये एज इट इज इसका उल्लेख आता है कि अंबेडकर इसको पूरी तरह से समर्थन करते रहे हैं। कई ऐसी चीजें थी जो रिलीजियस प्रैक्टिस, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स में रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट आता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस और भी संकेत किया कि कई ऐसे विषय हैं जो रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर संविधान को आधार बनाकर, मूल अधिकारों को आधार बनाकर भविष्य में ये इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना रहेगी। और हम ये देखते हैं
कि रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर भारत के जो व्यवहारिक जो हमारा जो पक्ष रहा है, इसमें ये निरंतर हमारे लिए संकट का, परेशानी का विषय रहा कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं थी उनको भी क्षमा करें, जो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं थी उनको भी हमको फोर्सफुली या ये कहें कि उसकी भी इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन करके रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जहां तक स्वभाव की बात आती है, चिंतन में ऐसा लगता है कि बड़ी उग्रता रही होगी, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मूल अधिकारों की जो चाहे सब कमेटी रही, चाहे एडवाइजरी कमेटी रही, यदि हम उसमें उनके पक्ष की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चिंतन बड़ा ही एग्रेसिव रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एक खूबसूरत पक्ष ये था कि कई बार तो बैठकों में चेयरमैन जो होते थे वो यही कह देते थे कि ऐसा है कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बैठकर इसको आप इसका निस्तारण कर दीजिए। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर कोई बात कह देंगे तो इसका मतलब वो ये होगा कि इसको फाइनल बात होगी। ये सब कमेटी के ही चेयरमैन नहीं, ये एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी यही बात कहते थे। और लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि प्रारंभिक समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फंडामेंटल राइट्स की जो एडवाइजरी कमेटीज हैं उनमें निरंतर सम्मिलित होते रहे। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि भारत की अस्मिता, भारत की उस समय की परिस्थितियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संविधान सभा में जिस प्रकार से कार्य या उनके जो चिंतन से हमको लाभान्वित होना था, वो उन परिस्थितियों ने हमको उनसे वंचित कर दिया। और यही कारण है कि जुलाई 1947 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत की उस समय की जो घटनाएं थी उनके कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस प्रकार की समितियों में अपने विचारों के माध्यम से हमको संविधान निर्माण में उस प्रकार से लाभान्वित नहीं कर पाए जितनी हम लोगों की अपेक्षाएं रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यदि हम दूसरी जो कमेटीज रही है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मैं वही वापस उनकी प्रोसीडिंग्स और उनके मिनट्स पे आता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे इस बात का गर्व इस बात का है कि जो आर्टिकल जिसको हम पढ़ते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति शब्द भारत के संविधान निर्माण में सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। BN राव ने जब क्वेश्चनर भेजा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर्स को, उसमें पूछा कि हेड ऑफ द स्टेट का नाम क्या होना चाहिए, तो उसमें कई लोगों ने, किसी ने प्रधान शब्द का इस्तेमाल किया, किसी ने मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज किया, प्रेसिडेंट शब्द यूज किया, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी में भी राष्ट्रपति ही शब्द का इस्तेमाल किया। और आप देखिए बड़ी विचित्र बात ये थी कि जो घनश्याम सिंह गुप्त जो संविधान के जो ड्राफ्ट, हिंदी का जो ड्राफ्ट बनाने की जो कमेटी बनाई गई थी, जिसके सभापति घनश्याम सिंह गुप्त थे, गुप्त समिति ने जो ड्राफ्ट बनाया 1949 में, उसमें भी उन्होंने राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें उन्होंने प्रधान शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को ये राइट में दिया गया था कि वे इसमें और किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, तो पुनः जो संविधान हमारे सामने आया हिंदी में, उसमें प्रधान की जगह राष्ट्रपति शब्द, आज हम जो राष्ट्रपति शब्द सुन रहे हैं उसके पीछे अगर कोई मौलिक अगर कोई शब्द कोई देने वाले हैं तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। श्यामा प्रसाद, यहाँ तक कि भारत के संविधान का जो भाग 5 है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि शब्द हूबहू वो शब्द काम में लिए गए हैं। कई जगह तो वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने के कॉन्टेक्स्ट में, कई जगह तो हूबहू वो शब्द काम में लिए गए हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिए थे। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस BN राव द्वारा भेजी गई उस क्वेश्चनियर में अपने उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया, वो सारे के सारे एज इट इज उसमें इस्तेमाल किए गए थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो योगदान है वो संविधान निर्माण में हमको प्रारंभिक तौर पर जो जुलाई 1947 तक जो संविधान निर्माण का जो प्रयास किया गया है, जो गठन की जो प्रक्रिया जो चलती रही, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जितना महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमको उसको आधार बनाकर ही संविधान सभा में उनके रोल को देखना होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की खूबसूरती इस बात के लिए भी कही जा सकती है कि संविधान सभा में वे तब बोले, कालांतर में
जुलाई 1947 के बाद में संविधान निर्माण में वे तब उन्होंने किसी विषय पर विचार अभिव्यक्त किए जब लगता था कि वास्तव में इस पर विचार अभिव्यक्त किया जाना ही चाहिए। लेकिन संविधान निर्माण की, जैसे मैंने निवेदन किया कि वो जो 4 नवंबर 1948 के पश्चात जो डिबेट है कि एक जो ड्राफ्ट आर्टिकल की एक जो डिबेट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें नहीं है। इसके पीछे कारण ये नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि भारत की तात्कालिक परिस्थितियां श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत की अस्मिता की ओर ज्यादा चिंतित करती थी। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1948 का जो दौर है वो पूरा के पूरा संविधान निर्माण पर कम और इस देश निर्माण पर ज्यादा रह गया। और यही कारण है कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संविधान निर्माण के उनके प्रारंभिक प्रयासों के, इतने सक्रिय प्रयासों के बावजूद भी हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संविधान निर्माण में उस योगदान से हम लाभान्वित नहीं हो सके जिसकी हमको अपेक्षा थी। मुझे ऐसा लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कश्मीर में उनका जो बलिदान है, उस बलिदान को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जुलाई तक, यानी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया 9 नवंबर 1946 से लेके अगस्त 1947 तक ले लीजिए, 1947 तक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान है उसको और कश्मीर की समस्या को, दोनों को यदि एक साथ लेके जोड़ते हैं तो हमको, जैसा कि कौशल किशोर मिश्रा जी ने कहा कि हमारा वास्तव में दुर्भाग्य ये है कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारे पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ते हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान निर्माण के लिए जो प्रयास करने वाले दूसरे संविधान निर्माताओं को जितना हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, शायद उन सब को मिलाकर जितना स्मरण किया जाता है उतना अकेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करते, यदि हम कश्मीर को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संविधान निर्माण के प्रक्रिया में प्रारंभिक तौर पर जो योगदान है इन दोनों को साथ सम्मिलित करके देखें। और मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं, क्योंकि माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी जहाँ विराजमान है, वहाँ इस प्रकार से अब जब ये इस संगोष्ठी में ये विचार आए गए तो मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रारंभिक योगदान संविधान निर्माण में और कश्मीर पर निश्चित तौर पर यहाँ की फैकल्टी शोध अवश्य करवाएगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और इस विषय पर व्यापक तौर पर हम सभी विचार करेंगे। और मैं जहाँ तक कौशल किशोर मिश्रा जी ने ये जो एक शायद उनकी ये पीड़ा, और बल्कि ये पीड़ा सही भी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम चिंतक के रूप में भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यदि अवसर मिलेगा तो कौशल किशोर मिश्रा जी निश्चित तौर पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में मैं ये प्रस्ताव जरूर रखूँगा। और यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा विश्वविद्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक भारतीय विचारक के रूप में पढ़े। हमने इस समय में दीनदयाल उपाध्याय जी को सम्मिलित किया है और निश्चित तौर पर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आपका आशीर्वाद रहेगा। मैं पुनः माननीय परम श्रद्धेय कुलपति जी प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का, श्रद्धेय प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी जी का और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस संगोष्ठी में न केवल भाग लिया पर मुझे इसमें बुलाया और मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मेरे लिए ये बेहद गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में मैं तो प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, इनको हमेशा शिक्षक के रूप में ही देखता रहा, स्वयं विद्यार्थी रहा। हालांकि विद्यार्थी तो मैं आज भी हूँ उनके लिए तो, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ वेब मंच को शेयर करने का मुझे अवसर देने के लिए पुनः परमादरणीय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ संविधान सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो रचनात्मक भूमिका थी उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया। सुबह मैंने बड़ी कोशिश की थी तमाम वेब पोर्टल्स पर और सर्च करके, कुछ मैंने एक किताब भी मैंने डाउनलोड की अमेजन किंडल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ऊपर, शायद कोई ऋतु कोहली जी की, लेकिन मुझे कश्मीर पर उनका दृष्टिकोण या जनसंघ पर या हिंदू महासभा तमाम मुद्दों को लेकर के
उनके दृष्टिकोण पर बहुत सारी बातें मिली। मैंने ये भी कीवर्ड सर्च किया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संविधान सभा में भूमिका, लेकिन मुझे ऐसा कोई विस्तृत आलेख या कोई किन कमेटियों में उनकी कैसी कैसी भूमिकाएं रही हैं, इस पर मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। और इस गैप को बहुत खूबसूरती से आपने भरा, इसके लिए हम आपको बहुत आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस तरह से हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है और हम सभी बड़ी व्यग्रता से हमेशा से अपने माननीय कुलपति जी को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो हम अपने माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करते हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। माननीय कुलपति। धन्यवाद अंबिकेश। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन विभाग और गांधी शोध केंद्र के तत्वावधान में आयोजित समृद्ध आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेरे अत्यंत आत्मीय प्रिय बंधु मित्र छोटे भाई अनुज प्रोफेसर राम सिंह आड़ा जी। विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर गोपाल रेड्डी जी। विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षक साथियों, विद्यार्थी दोस्तों, जब कौशल जी बोल रहे थे तो मैंने देखा कि अंबिकेश को छोड़कर किसी का भी वीडियो ऑन नहीं था। मुझे लगा कौशल जी को तो अभ्यास हो गया है मोबाइल के सामने बोलने का। आप सबसे इन कार्यक्रमों में कहता हूं, फिर से निवेदन करता हूं, अपना वीडियो ऑन करें। हमें ऐसा लगना चाहिए वक्ताओं को कि वो कुछ व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, अपने लैपटॉप से नहीं। मैं सबसे पहले महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संपूर्ण परिवार की ओर से आदरणीय कौशल किशोर मिश्र जी का और प्रोफेसर राम सिंह आड़ा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। कौशल जी ने उनकी सीमा नहीं लेकिन हमारी सीमा के हिसाब से पर्याप्त समय में विस्तार से पर्याप्त आयामों का स्पर्श करते हुए और समकालीन प्रश्नों को भी संबोधित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऐतिहासिक पक्षों को स्पष्ट करते हुए एक परिदृश्य रखा और उस परिदृश्य में संपूर्ण संवैधानिकता, ऐतिहासिकता और हमारी विधि व्यवस्था को प्राप्त संरचना, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, उस सब में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ दिखते हैं, उसको प्रोफेसर राम सिंह आड़ा ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। कौशल जी राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ विद्वान हैं, देश भर के लोग ने जानते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन के वो बड़े अध्येता हैं। हम जैसे लोगों ने बहुत सारा भारतीय राजनीतिक चिंतन पर उनसे ही सीखा है। वो विनम्रता में कहते बहुत लोगों को मालिक और गुरुजी वो कह देते हैं, लेकिन उनके इन शब्दों के लाक्षणिक अर्थ पर जाइएगा, अभिधा के अर्थ पर मत जाइएगा। और हमने आपने प्राय देखा है कि वो कितने ऊर्जस्विता से ही नहीं अपने हृदय से विषयों पर बोलते हैं। मैंने पिछले लगभग 25 वर्ष में राम सिंह आड़ा को विकसित होते हुए देखा है। भारतीय राजनीति के एक अध्येता के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक लेखक के रूप में, और उनको विकसित होते हुए देखना मेरे लिए इसलिए भी अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जैसा उन्होंने उल्लेख भी किया, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और अपने परिवार के सदस्य की प्रगति अच्छी लगती है। तो मैं पुनः एक बार प्रोफेसर राम सिंह आड़ा को बधाई देता हूं उनके वक्तव्य के लिए। आदरणीय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी को आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बातचीत की, संयोग से आज उनका जन्मदिन है, 120वीं जयंती है, और कौशल जी ने कहा 52 साल की उम्र में, 52 पूरे नहीं हुए, कुछ दिन रह गए थे, 52 साल की भी आयु पूर्ण नहीं हुई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। लेकिन उनके जीवन की ओर दृष्टिपात करते समय कुछ बातें लगती है मन में। ये जरूर समझ में आता है, वर्णन करने के लिए ठीक लगता है कि वो बहुत कम आयु में कुलपति हो गए थे, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में इतना वैविध्य है। वे गणित के बड़े अध्येता थे,
और इतने बड़े अध्येता थे कि उस समय में भी वे लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के सदस्य नामित हुए थे। वे एक बड़े वकील थे, उन्होंने बार एट लॉ भी किया था, वकालत भी कुछ दिन की थी। तो एक गणित के अध्येता भी थे, एक वकील भी थे, एक विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, एक राजनेता भी थे। संविधान सभा में उनके कार्य के बारे में अम्बिकेश ने कहा, मैं अम्बिकेश को बताता हूं। मेरे एक विद्यार्थी ने 2010 या 11 में, अमित सरोहा है मेरठ में, उन्होंने संविधान सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान पर मेरे साथ एमफिल किया है और इस समय वो पीएचडी भी उनको उपाधि प्राप्त हो गई है। उन्होंने पीएचडी मेरे साथ नहीं किया, मेरे पास सीट नहीं थी, लेकिन उन्होंने पीएचडी कर लिया है, बहुत अच्छा काम किया है। तथागत राय जो त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं वैसे वो, उन्होंने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक आधिकारिक जीवनी लिखी है, बड़ी विस्तृत है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। लेकिन ये सच है, विश्वविद्यालयों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस जीवन पर, राजनीतिक जीवन के वैविध्य पर शोध कम हुए। 1927 के आसपास ही वे शुद्ध राजनीति में भी आ गए थे और 1934 तक तो वो एक बड़े राजनेता थे। बंगाल के वित्त मंत्री रहे, बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से चुनकर गए। तो बाद में सरकारों से मतभेद होने के बाद इंडिपेंडेंट भी चुने गए, निर्दलीय भी चुने गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में भी चुने गए, हिंदू महासभा के बंगाल के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ये दल बदल नहीं है, ये विचारों का विकास भी है और अपनी वैचारिक निष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता भी है और एक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का उस समय में संपूर्ण संभव प्रस्फुटन भी है। मुझे कई बार लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की ओर राम सिंह ने संकेत किया कि कहीं हम ऐसा तो नहीं समझ रहे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चूंकि हिंदू महासभा से चुनकर आए थे, भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, तो उनके साथ एक बहुत सामान्य सा लेबल लगा देना कि वो सांप्रदायिक दल के नेतृत्व कर रहे थे, सांप्रदायिक विचारधारा के साथ थे, ये भी बड़ा आसान है। लेकिन यह भी समझना महत्वपूर्ण है, जैसा राम सिंह जी ने कहा कि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय की समिति में सबसे सक्रिय योगदान देने वाले व्यक्ति भी थे। इसलिए और फिर हम में से, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, विशाखापट्टनम में जहाज कारखाना, उसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। भारत की पहली उद्योग नीति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। हमको ऐसे भी समझना है, चित्तरंजन का लोकोमोटिव कारखाना भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। और फिर हमने उनकी पहचान किस रूप में की हुई है? सामान्यतः एक देश में एक विधान, एक निशान, और भारत के सिर मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर को भारत में संयुक्त रखने के प्रयासों में सबसे बड़ा बलिदान देने वाले व्यक्ति के रूप में, जीवन का बलिदान देने वाले व्यक्ति के रूप में। आजादी का अमृत महोत्सव का जो अवसर है, आजादी के 75 साल पूरे होने पर, इसका मुख्य मंतव्य यही है। हम पिछले अनेक वर्ष से आधुनिक भारत के निर्माण में जिन कुछ एक व्यक्तियों के आभा मंडलों की ओर देख रहे हैं और उन दैदीप्यमान आभा मंडलों से हमारी आंखें चौंधिया रही हैं, उनसे बाहर जाकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों, राज्यों, भाषाभाषी समूहों में व्यक्तियों के योगदान के समेकित परिणाम के रूप में ही भारत की आजादी है। वह कुछ एक व्यक्तियों का बलिदान मात्र नहीं है, उसमें किसका कितना अंश हमारी दृष्टिपथ से उपेक्षित हो गया है, यह महत्वपूर्ण है। और ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि विधिवेत्ता के रूप में भी, एक विधिवेत्ता के साथ साथ उस विधि को एक मंत्री के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, प्रयोगजन्य बनाने वाले व्यक्ति के रूप में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पृथक रूप में दिखाई पड़ते हैं।
संविधान सभा से बाहर भी। और कश्मीर का प्रश्न, आज 370 का उल्लेख इस विषय में भी किया गया है। 370 के प्रश्न को पिछले कुछ वर्षों से हमने एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में भी देखा। प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी या प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा की आयु के लोग ये जानते हैं कि कल्पना से परे था, अस्थायी होते हुए भी कल्पना से परे था इसके बारे में विचार करना। और ऐसा लगता था कि ये अस्थायी होते हुए भी अनायासी स्थायी हो गया है। अंग्रेजी वाले इसे बाई डिफॉल्ट बोलते हैं, बाई डिफॉल्ट स्थायी हो गया है, इसे तो अब हिलाया जा ही नहीं सकता। संवैधानिक प्रावधानों उपबंधों की ऐसी क्लिष्ट, दुरूह और अबोध व्याख्याएं की जा रही थी जिससे समझ में आता था कि इसे तो स्पर्श करना भी संभव नहीं होगा। और भारत को अपने अखंड अक्षुण्ण स्वरूप को बचाए रखना है तो इस पर बात करना स्थगित कर देते, ऐसा समझा जाता था। और आज वो संभव हुआ। वो किसी एक राजनीतिक दल विशेष की प्रशंसा मात्र नहीं, इसमें ये संपूर्ण भारत की इच्छा मात्र है। और आपने देखा जब वो हुआ तो संपूर्ण भारत ने उसका साथ दिया। अकस्मात हुआ, थोड़ा विस्मय के रूप में भी हमारे सामने अचानक प्रस्तुत हुआ, लेकिन संपूर्ण भारत की इच्छा थी। और उसी के कारण कहीं किसी प्रकार का भी हमें असंगत विचार देखने को नहीं मिला। जो विरोध करते थे राजनीतिक दल विशेष का, विचारधारा विशेष का, उनके पास भी इस निर्णय के विरोध का उपादान नहीं था। वो ये तो कहते हैं इसके बाद ये हो गया है, इसके बाद ये हो गया है, वो तो कहते हैं, जिसे अंग्रेजी वाले टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो तो हो रही है कुछ लोगों को। लेकिन अब बड़े होते चले जाएंगे तो दांत मजबूत होते चले जाएंगे, दाढ़ भी मजबूत होती चली जाएगी, श्रवण शक्ति भी सशक्त हो जाएगी। भारत की यह शक्ति निरंतर सशक्त हो रही है। और इस भारत की शक्ति के सशक्त होने में नींव के रूप में, आधार भूमि के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में और महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदुओं के रूप में, ऐसे प्रस्थान बिंदु जिनको हम सामान्यतः तीव्र गति में रहने के कारण हमारे दृष्टिपथ से ओझल होते हैं, उनको ध्यान देने का अवसर है। ये मैं प्राय कहता हूं ये भारत की पुनर्यात्रा का अवसर है। 75 साल के भारत के इतिहास की पुनर्यात्रा मात्र नहीं, संपूर्ण भारत के इतिहास की पुनर्यात्रा का अवसर है। 75 वर्ष इस नए भारत के जीवन में कोई अधिक वर्ष नहीं है किसी भी राष्ट्र के लिए। ये जो नया भारत, आजादी के बाद परतंत्रता, और मैं कहता हूं औपनिवेशिक शासन से परतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र मिलने का 75 साल का कालखंड, लेकिन इसमें हमें एक अवसर मिल गया है कि हम संपूर्ण भारत के इतिहास को एक बार फिर से देख सकें। और वो इतिहास कुछ घरानों तक, कुछ परिवारों तक, कुछ दलों तक, कुछ राजनेताओं तक, कुछ मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों तक सीमित मात्र न रहे। वह जाए भारत के सुदूर क्षेत्रों में, वह जाए दूर दूर बैठे हुए गांवों, कस्बों, मोहल्लों, संप्रदायों, समूहों, वर्गों में, क्षेत्रों में, जातियों में, और वहां देखे कि किसने भारत के, इस आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान दिया है। आज हम आप जो ये स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, उसकी निर्मिति में जिन मील के पत्थरों का योगदान है, उन सबको पहचानने का अवसर भी है। ये एक ऐसा अवसर है, भारत अपने स्वराज्य से साक्षात्कार करे, अपने स्व का पुनर्जागरण करे, स्व को फिर से देख ले। और उस स्व को देखने में अपने स्वजन, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, जिन्होंने अपने जीवन के सारे उत्कर्ष की उपेक्षा की, राष्ट्र जीवन की चिंता की, आपने देखा, राम सिंह जी ने उल्लेख किया कि वो संविधान सभा के एक समय के बाद उन्हें लगा राष्ट्र का निर्माण का विषय संविधान निर्माण से भी अधिक प्राथमिक है। आपको याद होगा राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निरंतर प्रारंभ से ये बात कहते रहे, यदि हम स्वतंत्र होते भी हैं और यदि हम इन विषमताओं के साथ स्वतंत्र होते हैं तो हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हमारे श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में यह अपरिहार्य पूर्व आवश्यकता है
कि हम सामाजिक विसंगतियों को, सामाजिक वैषम्य को, सामाजिक अन्याय को, सामाजिक कुरीतियों को, दुष्प्रवृत्तियों को दूर करें और उसके लिए भी साथ साथ प्रयास करते रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि वो क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल नहीं गए तो वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे। वे भारत के पुनर्निर्माण का विचार साथ साथ चला रहे थे। जैसे महात्मा गांधी भारत के पुनर्निर्माण में सामाजिक जागरण भी करना चाहते थे, व्यक्ति का निर्माण भी करना चाहते थे, आर्थिक स्वावलंबन भी करना चाहते थे, ग्रामीण कुटीर उद्योगों को सशक्त भी बनाना चाहते थे। यह जो सर्वांगीण विकास की अवधारणा के आयाम राष्ट्रीय आंदोलन में दिखाई पड़ते हैं, उस विशिष्टता को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तियों की जीवन यात्रा का पुनर्पाठ इन विश्वविद्यालय के विभागों में किया जाए। प्रोफेसर मिश्रा ने और प्रोफेसर आड़ा ने ये बात कही कि हम अपने विश्वविद्यालय में विभिन्न समाज विज्ञान के विभागों में विशिष्ट रूप से इस पर विचार करना प्रारंभ करें और अपनी पाठ्यवस्तु में, अपनी अध्ययन की सामग्री में, अपने अनुसंधान के क्षेत्रों में इन सब विषयों को भी सम्मिलित करते चलें। मुझे लगता है आज का ये कार्यक्रम हम इन दोनों वक्ताओं के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के अकादमिक समुदाय को कोई एक विशिष्ट दिशा प्रदान करने में निश्चित रूप से समर्थ होगा। मैं पुनः एक बार डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी, प्रोफेसर सुनील महावर और इस पूरी टीम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम कर रही है, उन सबको, शिक्षक साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र और प्रोफेसर राम सिंह आड़ा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे विभाग अध्यक्ष सुनील महावर जी को आमंत्रित करते हैं कि वो फॉर्मल वर्ड ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। सुनील महावर सर। धन्यवाद अंबिकेश जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव समिति के अंतर्गत महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग और गांधी शोध केंद्र द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन का कार्य मुझे सौंपा गया और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बृहद कार्य है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो संविधान सभा और संविधान निर्माण में जो उनकी भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने संविधान निर्माण में जो उनके विचार थे, उनका जो चिंतन था, उस चिंतन में किस तरह से अपना योगदान दिया, उस पर जो है एक तरह से विचारों से जब जो व्याख्यान हमको सुनने को मिले, उससे हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। मैं सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपकी प्रेरणा से हम इस तरह के कार्यक्रम निरंतर आयोजित कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद हमें निरंतर इस तरह से मिल रहे हैं। आपने इस तरह से कहा कि श्यामा प्रसाद जैसी महान विभूतियों का पुनर्प्रयास विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, विश्वविद्यालयों में उनके चिंतन पर कार्य होना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार सर। आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद हमें इसी तरह प्राप्त होते रहें। मैं हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके नेतृत्व में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बहुत सारे कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम जो आज आयोजित किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम में हमको इस तरह के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ जिनसे हम कई बार जिनसे हमको वो पर्याप्त जानकारी हमको इंटरनेट पे या दूसरी जगह से नहीं प्राप्त। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज के जो मुख्य अतिथि थे कौशल किशोर मिश्र सर, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जिस तरह के विचार प्रस्तुत किए और हमेशा ही आपके ओजस्वी विचार जो हमको सुनने के अवसर प्राप्त होते हैं, आप हमेशा हृदय से बोलते हैं और आपके विचार जो है वो हमेशा विचारोत्तेजक और एक नई आप कह सकते हैं ज्वाला मन में उत्पन्न करते हैं। आपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऐतिहासिक संस्मरण पर जो आपने व्याख्यान दिया वो बहुत ही अद्भुत रहा। आपने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर अनेक महान विभूतियों का प्रभाव था, जिनमें गांधी जी की जो सत्य अहिंसा और सत्याग्रह था, उनका ही प्रभाव श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर रहा।
आपने आपने बताया कि गांधी जी की हत्या जब हुई तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को हार्दिक पीड़ा हुई और इस वजह से जो है उन्होंने हिंदू महासभा से भी त्याग कर दिया। तो आपके जो व्याख्यान है हमेशा ही विचार उत्तेजक और हमको प्रेरणा देने वाले रहते हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार सर। आज के मुख्य वक्ता मेरे आदरणीय प्रोफेसर राम सिंह आढ़ा जी ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो भूमिका रही माननीय श्याम प्रसाद मुखर्जी को, उस भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डाला, लेकिन उन्होंने साथ ही बताया कि माननीय श्याम प्रसाद मुखर्जी की जो भूमिका हो सकती थी संविधान निर्माण में वो नहीं हो पाई और उसमें कुछ परिस्थितियों का, उस समय जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों का प्रभाव रहा। संविधान निर्माण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो भूमिका वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती थी। आपका व्याख्यान गहन शोध पर आधारित और जिस तरह से संविधान निर्माण में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जो प्रश्नावली के द्वारा जो अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए वो विचार महत्वपूर्ण थे और उनका बहुत सारा जो एक तरह से संविधान में कहीं न कहीं उनको इंक्लूड किया गया। आपका भी हृदय से आभार भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के वेबिनार में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्यक्ष और संकाय अध्यक्षों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विभाग के जो सभी साथी हैं, डॉक्टर असलम खान, डॉक्टर जुगल किशोर दादी, डॉक्टर अभय विक्रम, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के जो संचालन कर रहे थे डॉक्टर अमृतेश कुमार त्रिपाठी, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही अन्य हमारे साथ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं मौजूद हैं, प्रोफेसर प्रसून, डॉक्टर प्रशांत जी, डॉक्टर विजय शर्मा जी, डॉक्टर जुगल दादी, डॉक्टर सपना जी और डॉक्टर विमलेश जी, तो मैं हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जितने भी लोग हम वेब मंच पर हमारे यहाँ सहभागिता कर रहे हैं, जुड़े हैं, उनका सबका मैं विचार अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद प्रोफेसर महावर सर। अब इस कड़ी में हम सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े होकर के राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, आहे जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अन्य कार्यक्रम हम आगे करवाते रहेंगे और आप लोगों का इसी तरह से सानिध्य, सहयोग और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। माननीय कुलपति जी की आज्ञा से हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सबको नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। कौशल जी नमस्कार।